Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this fourth chapter from geography, agriculture. We are understanding about the Indian agricultural system. इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर trying to understand in detail that the agricultural practices that are there in India, these agricultural practices are the lifeline of the Indian economy. Believe me, children, when we talk of economy, we talk about the primary sector, maximum employment we find in primary sector. People who are there in the primary sector, they are majorly involved into agricultural business. How agriculture is done and how it is practiced, that is what is very clearly mentioned, and we are discussing about it. What we have discussed till now is the types of farming, primitive subsistence farming, and intensive farming and commercial farming. Three major types of farming we have discussed. Then we have also discussed about, now what we are discussing is, we discussed about the cropping pattern. Cropping pattern में हमने क्या डिस्कस किया? रबी, खरीफ and ज़ैद. Now what we are discussing is, we are discussing about the major food crops of India. Major food crops of India. When we are talking about the major food crops, in the last class we have discussed about, हमने क्या डिस्कस किया था? We have discussed about three major crops along with the map book. Please remember, we have discussed about rice, wheat and millets. Millets are those grains which are very coarse. बहुत ही thick grain होते हैं, very thick grain, very coarse grain, and in India, major portions in India are using this coarse grain. काफी सारे लोग ये मोटा वाला अनाज खाते हैं and used on a very large scale by the people who really care for health. जो थोड़ा भी healthy lifestyle चाहते हैं, they are involved, they are eating and consuming this coarse grain. ये मोटा वाला जो अनाज होता है, इसी को consume करते हैं. Healthy people want that. Health इसमें क्या क्या था? The ज्वार, बाजरा, रागी. Which kind of seasons are we growing it? ये भी हमने समझा. We try to understand which seasons these crops are grown and how important these crops are for the Indian states and for the Indian conditions. आज another major food crop जिसके बारे में हम बात करेंगे, that is, we are talking about, हाँ जी हाँ, yes, I'll be telling in Hindi, that is भुट्टा, maize. Yes, it is again used. अब मेज के साथ क्या है ना, पहला इसका क्वालिटी ये है, it is used as food and fodder. खाने की तरह भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और चारे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. It is used as food and fodder. And दूसरी चीज, it is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. It is a kharif crop which requires, किस तरह का इसमें टेम्परेचर चाहिए, कितनी इसमें, बिकॉज क्या होता है ना, एनवायरनमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस. किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो पहले हमको उसका क्लाइमेटिक कंडीशन समझना बहुत जरूरी है.
गर्मी चाहिए, बारिश चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्ट चाहिए, एवरीथिंग ये आप, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सम क्रॉप. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम क्रॉप की ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन. तो क्लाइमेट के बारे में बताना बहुत जरूरी है. यू नीड टू मेंशन अबाउट द क्लाइमेट इन डिटेल. इसलिए टेम्परेचर इसमें क्या होना चाहिए, विच रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज नीडेड हियर, किस तरह का सॉइल चाहिए. इट ग्रोज वेल ऑन alluvial soil. एल्यूवियल सॉइल जो थोड़ा सा गंगा के आसपास की जो मिट्टी होती है वो उस तरह का सॉइल इसके लिए अच्छा है, सुटेबल है. एंड कुछ स्टेट्स है, सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो, खाली खरीफ सीजन में नहीं. सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज खरीफ सीजन, मेजरली खरीफ सीजन में ही ग्रो होता है. लेकिन सम स्टेट्स में रबी सीजन में भी ग्रो हो रहा है. इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्रॉप है कि दोनों सीजन में ही इसको ग्रो किया जा रहा है. मतलब सम फार्मर्स देयर लाइफ इज डिपेंडेंट, क्योंकि क्या होता है ना, जाड़े वाड़े में कभी कभी मक्की का आटा उटा बहुत यूज होता है, कंज्यूम होता है, तो डिमांड इंक्रीजेस कि हमें मक्की का आटा और चाहिए. तो मक्की का आटा इज मक्का होगा तभी मक्की का आटा होगा ना. मेज इज व्हाट मक्का. तो दैट इज व्हाट इज देयर. एंड अब ये ग्रो करते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट है. जिससे डिमांड होती है, जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उसी हिसाब से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. And how it is grown, it is use of modern inputs are there. Use of modern inputs like HYV seeds, अच्छी क्वालिटी का सीड्स यूज करते हैं. जितना अच्छी क्वालिटी की सीड होगी उतनी अच्छी पैदावार होगी. HYV seeds, fertilizer and irrigation. Fertilizer and irrigation have contributed to increasing production of maize. Contributed, ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत इंप्रूव कर गई है. Got it? Please understand, it is as important as the growth of the crops, and growth depend कर रहा है on the availability of मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स. मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से तो हर एक चीजों की ग्रोथ इंप्रूव कर गई. हर एक चीज, फॉर एवरी क्रॉप द आउटपुट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज इनपुट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड. जितना अच्छा उसमें आप जितना पैसा लगाएंगे, भाई पैसा पैसे को खींचता है. सिंपल में आई एम एक्सप्लेनिंग. सो द मनी, द काइंड ऑफ मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड, इट हैज रियली इम्प्रूव्ड द आउटपुट. ये था. अब मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, किन किन स्टेट्स में हमको, स्टेट्स हम कुछ भी कर लें, वो हमको जो है स्टेट्स के बारे में हमको मेंशन करना ही है और स्टेट्स हमको याद रखना ही है. वैसे इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, सम क्रॉप्स आर वेरी, सम स्टेट्स आर कॉमन. चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, आई मीन मेज इज ऑल्सो ग्रोन. तो कुछ स्टेट्स का नाम तो कॉमन ही आ रहा है, बहुत ज्यादा इसलिए याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कॉमनली भी इसको याद कर सकते हैं. तो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? मेज पक्का कहाँ पे हो रहा है? वी नीड टू मेंशन दैट
कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा। ओके, अब यहाँ पे आपने देखो उत्तर प्रदेश है, हर एक चीज क्या होता है ना कि कृषि प्रधान राज्य। Some of the states are there that are known for its agricultural output. ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं. Most of the people are engaged in agricultural business. Got it? So इस वजह से क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट्स का नाम बार बार आ रहा है. ओके, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, These are the major maize producing states. यहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का हो रहा है. इसके बाद अब आते हैं दूसरे क्रॉप के ऊपर जिसके बिना तो हम खाना सोच ही नहीं सकते. We cannot think of our food without this crop. Major crop of India. ऐसा कोई घर नहीं है जहां ये न बनता हो. Yes, my dear students, I am talking of pulses. मैं दाल की ही बात कर रही हूँ. ओके, इट इज सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर. जितना ग्रो करते हैं उतना ही खाते भी हैं. आई टोल्ड यू ना, ऐसा कोई घर नहीं जहां दाल नहीं बनता. प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए. द पीपल हु आर डाइटिंग टू द पीपल हु आर नॉट वेल, डॉक्टर्स रेकमेंड हर तरीका, कितनी तरीके की दाल होती है. So you need to consume pulses on a daily basis to have a healthy physical condition. Healthy body के लिए pulses is really required. Largest producer as well as consumer of pulses in the world. India is the largest producer as well as consumer of pulses. ठीक है, जितना ग्रो कर रहे हैं उतना ही खा भी रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है. एंड दिस इज नॉट द इंडियन सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा दाल हमारे यहाँ हो रहा है एंड दैट इज व्हाट इज कंज्यूमिंग. अच्छा, एक चीज और यहाँ, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन द बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इट वाज जस्ट कमिंग टू माय माइंड. मेनी कंट्रीज आर देयर which where the people consume and people take intake जो उनका है that is through I mean the intake that is there, the consumption that is there, that is through not vegetarian. And India is a country जहाँ पे major population is dependent on vegetarian food. तो जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं उनका स्टेपल डाइट में तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन से प्रोटीन मिल रहा है. तो आप मैं क्या कंपेयर क्या कर रही हूँ, द काइंड ऑफ प्रोटीन दैट यू गेट फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन फूड, द सेम काइंड ऑफ प्रोटीन एंड माइट बी बेटर क्वालिटी प्रोटीन यू गेट फ्रॉम पल्सेस. इसलिए भी हमारे यहाँ पे दाल का कंजम्पशन इतना ज्यादा है. इट इज मेजर, आई जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. It is a major source of protein in a vegetarian diet. कोई भी वेजिटेरियन पर्सन है, प्रोटीन की जरूरत है, तो ये प्रोटीन कहां से आ रहा है? दिस प्रोटीन इज कमिंग फ्रॉम दाल. एंड मेजर पल्सेस, कौन कितने, मैंने कहा ना बहुत तरीके की दाल है. द काइंड ऑफ पल्सेस दैट वी कंज्यूम, देयर आर वैरायटी ऑफ पल्सेस अवेलेबल इन इंडिया. सो मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर
Major pulses grown in India are urad, tur. Tur is also अरहर. अरहर को बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में ना बहुत जगह पे तूर भी कहा जाता है. मूंग, मसूर, चना, peas. Yeah, peas, you know it very well. Chana is there. These are peas है there. Peas is there. चने की दाल जो होती है, and ग्राम. एक्चुअली चने की दाल में बहुत तरीके का है ना. काला वाला चना होता है, एक पीला वाला चना होता है. तो चना का भी क्वालिटी अलग अलग है. अब इसमें जितने भी दाल का नाम हमने दिया है, द नेम ऑफ द पल्सेस दैट आर गिवन हियर, कैन यू टेल can you distinguish which is the pulses grown in Kharif season and which are grown in Rabi season? इसमें से कौन सी दाल ऐसी है which is grown in the Rabi season and which is grown in the Kharif season? Some of you who have a background of a village, थोड़ा सा जो विलेज का हल्का फुल्का जिनका बैकग्राउंड है वो जरूर बता सकते हैं इसको. वो दे कैन डेफिनेटली टेल दैट रबी एंड खरीफ. गांव में आपने देखा होगा, आपके खेत होंगे, वहां पे दाल की खेती हो रही है. तो अब ठंडी में कौन सी दाल ग्रो होती है और गर्मी में कौन सी दाल ग्रो होती है ना, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट. पल्सेस, ठीक है. अब ये दैट यू नीड टू डिसाइड. इस पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग्स दैट खरीफ सीजन एंड रबी सीजन में कुछ दाल ऐसी हैं विच इज ग्रोन इन बोथ द सीजन. दाल का कंजम्पशन इतना है ना, एंड दाल के पैसे भी अच्छे मिलते हैं. तो द फार्मर्स जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, द पीपल हु कैन रियली इन्वेस्ट मनी, पैसा आते ही दाल की खेती करते हैं. चावल है, गेहूं है, उतना ज्यादा महंगा नहीं है इन कंपैरिजन टू दाल. व्हाट इट दैट इज देयर. पल्सेस नीड, और पल्सेस में सबसे जरूरी क्या है, इट नीड्स लेस मॉइस्चर. बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, एंड इट इज सर्वाइविंग इवन इन ड्राई कंडीशंस. मतलब बहुत बारिश की जरूरत नहीं है. पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव्स इन ड्राई कंडीशंस ऑल्सो. बहुत ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी सूखी हुई भी है, तो भी दाल की खेती आराम से हो रही है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेग्यूमिनस क्रॉप. बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स इट्स सो गुड फॉर द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी के लिए जितना आप सोचो कितनी अच्छी चीज है दाल. हाउ गुड एंड न्यूट्रिशियस थिंग इज. इट इज गिविंग अस द प्रोटीन एंड इट इज गिविंग द it is restoring the soil fertility as well. While growing, उसमें से जो liquid बाहर आ रहा है, and the kind of secretion that is there from that crop, it is increasing the soil fertility. So, being leguminous, it is called as leguminous crop. Got it? Leguminous crop. All these crops except arhar, all these crops except arhar, ठीक है, restore soil fertility. बहुत जरूरी है. You cannot compromise with the fertility of the soil that is there. और ये इसमें कैसे होता है ये, by fixing nitrogen from the air. Nitrogen from air. एयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करके और उसके थ्रू लैंड की और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. ये
dal ki crops. Okay, and therefore these are mostly grown in rotation with other crops. बाकी के क्रॉप्स जो है फर्टिलिटी सॉइल का जो है ले लेते हैं. इट इज grown in rotation with other crops. बाकी के जो क्रॉप्स हैं उसके साथ ये दाल का क्रॉप जरूर ग्रो होता है कि अदर क्रॉप्स के वजह से सॉइल की फर्टिलिटी विच हैज लॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट हैज लॉस्ट इट वुड बी रीगेन्ड. वापस से वो फर्टिलिटी वापस आ जाएगी अगर दाल की खेती की जाएगी. सो in all the states in India, mostly pulse producing states. अब सोचो, let's understand which states are there. Mostly pulse producing states in India are. इंडिया के पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स प्लीज अंडरस्टैंड वही बात है, वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, all these, okay, and Maharashtra. So many states where rice is grown. Pulse is grown. ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट्स में इट्स नॉट ग्रोन, इट इज ग्रोन इन द अदर स्टेट्स, लेकिन मेजरली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यही हैं. यहीं पे सबसे ज्यादा पल्सेस की खेती हो रही है एंड आउटपुट उसका बहुत ही अच्छा आ रहा है. और कितना कंजम्पशन है, वी कंज्यूम पल्सेस ऑन सच अ लार्ज स्केल. इतना हाईली कंज्यूम करने के बाद भी these some of the states are topping the chart. तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. सूखी जगह पे भी खेती हो रही है. इन द ड्राई प्लेसेस ऑल्सो क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन. ये जानते हो, अभी जो हमने पढ़ा, व्हाट वी हैव रेड राइट नाउ इज डेली कंजम्पशन फूड क्रॉप्स, जिनके बिना हम मर जाएंगे. बिलीव मी, आई एम यूजिंग दिस हार्श वर्ड because it is there कि imagine a situation where wheat is not available and rice is not available and pulse is not available. हमारे थाली में अगर रोटी दाल चावल अगर नहीं है तो आप सोचिए कि what would be the survival criteria. हम कैसे जिंदा रहेंगे, इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिएगा. लेकिन कुछ चीजें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमको दाल चाहिए, चावल चाहिए, भुट्टा भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन खाना तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मीठा नहीं मिलेगा. राइट? A general statement that was coming to my mind that we want healthy, nutritious food, but along with the nutritious food, the importance of the food doesn't stay. इंपॉर्टेंस नहीं फूड का. अभी तो भाई दाल चावल खा के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबको मीठा मिलेगी, लेकिन अगर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रोज के खाने के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. फूड ग्रेन्स अदर देन, आई एम सॉरी, food crops other than grain. दाल चावल के अलावा जो चीजें हैं उसको भी ग्रो करने में कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो अभी जो मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज दिस. मीठा तो बनता है, मीठा तो चाहिए ही चाहिए. सो इट इज, प्लीज अंडरस्टैंड, अब the growing conditions of the sweet,
that reaches our home in the form of sugar. So sugarcane, how is it growing? It is a tropical as well as subtropical crop. सबसे पहली चीज, I told you, कोई भी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी एग्रीकल्चरल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे. इट इज अ ट्रॉपिकल as well as subtropical crop. ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिक्स के पास ये बहुत ग्रो होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो ग्रोइंग टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिक के ऊपर का जगह है वहां पे भी इट इज ग्रोन. एंड इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अभी का जो क्लाइमेट है ना, दिस इज द बेस्ट. जितना ये सारा जो हमारा ह्यूमिडिटी है इन द एनवायरमेंट, इट इज गोइंग ऑल इन द शुगर केन. वो जो आप रस पीते हैं, यस, गन्ने का जूस. दिस इज दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट जहां पे हम इतना स्वेट कर रहे हैं. दिस इज वेरी गुड फॉर शुगर केन. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इट ग्रोज वेल in hot and humid climate. ठीक है. With a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. With a temperature of 21 degree to 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर याद रखना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भूलना नहीं है. गॉट इट? बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रेनफॉल भी चाहिए, थोड़ा सा बारिश भी होनी चाहिए. बारिश होती रहती है इस तरह के वेदर में, तो द फ्रीक्वेंट रेन्स डू अकर. एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर. एनुअल रेनफॉल लगभग, मतलब इतनी बारिश होनी ही चाहिए, बिटवीन 75 सेंटीमीटर. बिटवीन 75 टू, आई एम सॉरी, बिटवीन बोल रही हूं और एक ही लिखा है, 75 टू 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए. 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश की रिक्वायरमेंट है. जहां कम बारिश हो रही है वहां पे पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता है. पानी तो चाहिए ही चाहिए शुगर केन को. ओके, सो इरिगेशन इज रिक्वायर्ड. Irrigation is required in conditions of low rainfall. कम बारिश हो रही है तो आपको पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा. एंड इट इज ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल. एंड काफी मेहनत चाहिए. बहुत तरीके की मिट्टी पे ये ग्रो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत चाहिए. एंड शुगर केन में वन थिंग मोर इज इंपॉर्टेंट. दिस आई डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. एक्चुअली दिस नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन. इसमें कम से कम थोड़ा सा और टाइम लगेगा. सो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ शुगर केन. ओके चिल्ड्रन, 2-3 थिंग्स, जस्ट मार्क इट इन द बुक इटसेल्फ. Students, this is the map work for wheat that we have done in the last class. Last class में हमने wheat growing states के बारे में we have understood about all these. Now today what we have done, आज हमने जो किया, yes, एक तो हमने we have talked about maize. Please remember, while you are revising from the chapter, what you need to concentrate on is the temperature and the season and the weather conditions that are there. मेज कल्टिवेशन आप देखो, गांव में ये गांव की पिक्चर है वेयर मेज कल्टिवेशन हैज़ बीन शोन हैपनिंग प्रॉपरली. काफ़ी सारी लेडीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे पता चल रहा है कि कितने लोगों का आई मीन सो मेनी पीपल्स लाइव्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस मेज कल्टिवेशन. गॉट इट?
व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमने देखा। इसके बाद पल्सेस के बारे में जब हमने बात किया है, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट पल्सेस, एक चीज़ याद रखना, which is एक one question had come, it was there in the last years one of the sample papers, name some of the leguminous crops of India। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आपको पल्सेस के बारे में बताना है। पल्सेस का वन लाइन में समथिंग वाज टू बी मेंशन अबाउट द पल्सेस, बस यही छोटा सा एक एक्टिविटी था। तो आई थॉट कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी मेकिंग द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द concept of the leguminous crops। ठीक है, just these two things that I wanted to make you to point out from the book itself, children। आज हमने शुगर केन के बारे में शुरू किया है। विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।